ये एपिसोड सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन नहीं, एक वेकअप कॉल है। आज हम सोचते हैं बच्चे बस फोन यूज कर रहे हैं, पर रियलिटी वो एक ऐसी डिजिटल दुनिया में है जहां स्ट्रेंजर्स उन्हें नॉर्मल लगते हैं। ट्रस्ट सेकंड्स में बनता है और एक गलत क्लिक सब कुछ चेंज कर सकता है। और सबसे स्केरी पार्ट, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता स्क्रीन के पीछे चल क्या रहा है। इस एपिसोड में हम डिकोड करते हैं बच्चे ऑनलाइन कर क्या रहे हैं, क्यों वो स्ट्रेंजर्स पर ट्रस्ट कर लेते हैं और कैसे आप अर्ली साइंस पकड़ सकते हो साइबर बुलिंग, गेम एडिक्शन और अनसेफ इंटरैक्शंस की। और एक बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रुथ, शेयरिंग। आज आप जो पोस्ट कर रहे हो वो कल आपके चाइल्ड की प्राइवेसी को अफेक्ट कर सकता है। और इन सब पे क्लैरिटी देने के लिए हमारे साथ है निराली भाटिया, साइबर साइकोलॉजिस्ट, टेडेक्स स्पीकर और सर्टिफाइड CBTN इंटरनेट एडिक्शन थेरेपिस्ट। 15 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने गुड़गांव पुलिस के साथ काम किया है, MTV के शो ट्रोल पुलिस पर साइकोलॉजिस्ट रही है और 100+ वर्कशॉप्स के थ्रू 40,000 लोगों तक इम्पैक्ट क्रिएट किया है। 2016 में उन्होंने शुरू किया एक एंटी साइबर बुलिंग इनिशिएटिव जिसका नाम है साइबर बाप, जो विक्टिम्स को काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं निराली भाटिया के साथ एक ऐसा कॉन्वर्सेशन जो आपकी आंखें खोल देगा। सो थैंक यू निराली फॉर ज्वाइनिंग। सो टुडे हम लोग बात करेंगे रेजिंग obviously a digitally safe child. Right. We'll talk about their behavior online, obviously from the psychological perspective. But before that, Nirali, if you can just brief about you, what are you doing exactly in this space? और आप ये स्पेशल, मैं इसको कॉज बोलूंगा कि आप ये कॉज कैसे, how did you land up here? Yeah. So firstly, thank you, Abhishek, for having me. And I must also thank you for picking up this topic, I mean, each one of us as a parent or as a nurturer has so many questions around it, but we rarely go seek answers. We're like, हाँ, अब तक जैसे हो रहा है हो जाएगा, हम बड़े हो गए, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे. But unfortunately, no. Today we definitely need to upgrade ourselves to, the entire digital way of parenting. And so thank you for picking up this topic as well. If I have to share my journey, of course, being a psychologist, I've always been very curious about human behavior in every aspect. So I have an interdisciplinary career, technology and psychology. Okay. I run a company which is into technology. We build mobile apps and websites. Okay. Over there also, my focus is primarily how is it going to influence the user who's going to see this and make their decisions. Okay. So that's in that domain, we call it as user behavior or usability analysis. That's what I do. Okay. And in psychology, I have my counseling practice. So yes, I do work with adolescents, parents on relationship issues, behavioral issues, career assessments. So these are some of the domains that I work in. It was a very natural progression for me to get into cyber psychology aspect because let's also understand that the cyberspace is absolutely psychological space. ये virtual place है. यहाँ आप physically कुछ महसूस नहीं करोगे, but it impacts you emotionally and psychologically. Okay. And that's when, and of course, when I became a parent and when my son was growing up, digital world slowly existence में, as in personal lives में existence में आया. True. I still remember my son was 10 years old and वो competitive sport खेलता है and he was part of a movie called Hawa Hawaii, which was about children who are into inline skating. So he's part of that and he had to travel every day to Goregaon for shoot. अब हर बार तो मुझे उससे कांटेक्ट करना होता था तो मुझे उसके कोच को फ़ोन करना पड़ता, फिर वो उसके फ़ोन दे. So now it was time that we had to give him a phone and a phone where it was a digital device because or internet enabled device क्योंकि वो खुद से भी travel करना शुरू कर रहा था. Now this is what curiously took us into that, and both me and my husband as involved parents, we decided that we must upgrade ourselves. Only if we are aware can we make sure that we give the right knowledge, right etiquette and information to our child. Correct. True. So that's where the journey began. It started not just with empowering my child and making him safe, but also his peers and around. So I started doing the cyber safety work for children with नुक्कड़ नाटक्स. तो हम स्कूल में जाके नुक्कड़ नाटक करते थे to
sensitize children and dramatically show them that what does bullying look like. मजाक ये पार्ट ऑफ ग्रोइंग है, बट वो मजाक बुलिंग कब बनता है ये बच्चों को समझ नहीं आता है. एंड क्योंकि इंटरनेट एनेबल डिवाइसेस आ गए थे, बच्चा मेरा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था, सो दे हैड आईपैड यूसेज, तो अब ये साइबर पे भी बुलिंग जाने लगी. एंड टू मेक श्योर दैट दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, वेल एजुकेटेड, टू अंडरस्टैंड द राइट बिहेवियर एंड नॉट अन अप्रोप्रिएट बिहेवियर. That's how this whole journey into cyber safety became stronger and stronger. And now, I think in 2016, then I formed an anti-cyberbullying organization. Oh, nice. Okay. So the foundation goes by the name of Cyber Wellness Foundation. And हमारा flagship initiative है Cyber BAP, which stands for Cyberbullying Awareness, Action and Prevention. Especially for the child. Yes. So we address any kind of online harassment as bullying when the victim is under age of 18. अगर अडल्ट्स होते हैं तो फिर फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट के हिसाब से हम उसे अलग अलग नाम दे सकते हैं कि स्टॉकिंग है, ट्रोलिंग है, या बुलिंग है, या टीजिंग है, बहुत कुछ और हो सकता है. बट व्हेन चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व्ड, लार्जली मोस्ट ऑफ द हैरेसमेंट वी रेफर टू एज साइबर बुलिंग. सो the entire initiative is to safeguard every citizen, but yes, our focus is more on children and women because they are typically targeted very easily online. True. So in 2016, I formed that organization, and we're a not-for-profit organization. And today we are an app-enabled solution. Okay. So हमारा CyberBAP नाम से app है on all the app stores, Google का and iOS का, and also on our India's app store. Very nice. And we over there, if you're facing any form of harassment online, you can report to us. Okay. You can get in touch with our counselors. And you get your daily dose of awareness. जब हम साइबर सेफ्टी वर्कशॉप्स करते हैं जो पब्लिक के लिए ओपन है, तो वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है. यू कैन जॉइन अस फॉर दैट. ऑल्सो इट हैज़ अ डायरेक्टरी ऑफ वेटेड प्रोफेशनल्स इन साइबर डोमेन. इन केस आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ एंड यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल, लेट्स से साइबर लॉयर और अ साइबर साइकोलॉजिस्ट और डिजिटल एंथुजियास्ट और अ रिपोर्टर, एनीवन यू आर लुकिंग एट, आपको वहाँ पे सिटी वाइज एंड प्रोफेशन वाइज वो मिलेगा. सो दीज आर द 4 areas which we cover in that. Correct. So the journey, well, of course, started as personal, but yes, it's all about safeguarding not just our children but ourselves also. No, it's great to know because it's need of the hour, Nirali. समझना चाहेंगे हम लोग कि बच्चे ऑनलाइन जा रहे हैं, पेरेंट्स के लिए इट्स अ स्क्रीन टाइम. करेक्ट. बट एक्चुअली बच्चे कर क्या रहे हैं फोन में, इफ यू कैन डिकोड. या सो आज के बच्चे जो हैं, मतलब मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा डेटा प्रोवाइड करके बताएं, आपके एक्सपीरियंस से बताइए कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर शेयर. या यस, अभी आज के टाइम पे अगर हम देखें तो देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ जनरेशंस जो ऑनलाइन है. पेरेंट्स जो मेरी उम्र के हैं, हम जेनेक्स से आते हैं, तो वी आर एंड डिजिटल अडेप्टिव, वी आर नॉट डिजिटली नेटिव्स. लेकिन हमारे बच्चे जो हैं, जो जेनजी एंड ऑनवर्ड्स हैं, they all are digitally native children. तो इनके लिए ऑनलाइन वर्ल्ड सिर्फ एंड सिर्फ स्क्रीन नहीं है, या सिर्फ कोई एक एस्पेक्ट नहीं है. इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द सोशल लाइफ्स. सो बच्चे ऑनलाइन करते क्या हैं, तो दे आर गेमिंग सोशली. आज सारे गेम्स मल्टीप्लेयर गेम्स हैं. आप उसमें लोगों से, अपने दोस्तों से या उनके दोस्तों से आप चैट भी कर सकते हो. यू कैन हैव वॉइस, यू कैन हैव वीडियोज, एंड यू कैन हैव टेक्सटिंग चैट. सो दैट इज व्हाई आई कॉल इट गेमिंग सोशली. They are also having private conversations. They are exploring their identities through avatars, through various accounts, जो वो लोग multiple accounts create करते हैं just to explore their identities, क्योंकि online world anonymity भी provide करता है. So lot of things that children are doing besides education भी है, entertainment भी है, short form of videos जो आजकल बहुत like everybody is glued to them. यहाँ से चिल्ड्रन के बिलीव्स, वैल्यू सिस्टम्स, लर्निंग्स, आइडियोलॉजीज सब फॉर्म होती हैं. सो इट्स प्राइमरीली अ वर्ल्ड विच इज़ शेपिंग देम अप. तो ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ कोई एक चीज़ नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स का ये बिलीफ सिस्टम रहता है कि ऑनलाइन क्या कर रहा है, तो टाइम पास कर रहा है. बट दैट्स अ बिगेस्ट अंडरस्टेटमेंट एंड a lie to self. अगर आप एज अ पेरेंट ये मानते हो कि नहीं मेरा बच्चा तो ऑनलाइन बस सिर्फ खेलता है, नो,
ये बहुत कुछ कर रहे होते हैं ऑनलाइन, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो ओनली फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन आई कैन स्पीक ऑफ दैट हमने इन दीज लास्ट 2016 से लेके अभी तक 10 सालों में मोर देन 10,000 विक्टिम्स से उनकी हेल्प करी है। Okay. इसमें से 70% हैव बीन चिल्ड्रन। Oh. So that's what children are doing. The good thing of this 70% is कि at least they reached out for help. But you are saying 70% children, they Of 10. have been the victim of cyber bullying or Yes. maybe... So अगर 70% bullying हो रहे इंडियन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 1 out of 5 child Okay. is bullied online. Either they have witnessed bullying or they've been bullied themselves. Okay. So now you can do the math, and उसमें से the only good thing I look at it is कि at least they are seeking help. Great, yeah. Also, एक और fact that I would like to say is that out of this 70%, more than 50% have written to us कि please do not let our parents know. Now, when something like this happens, it's a big alarm for parents. क्योंकि पेरेंट्स हमारी सबसे पहली लाइन ऑफ सपोर्ट होने चाहिए, लेकिन बच्चे नहीं समझते। Why? Because of course, it's also somewhere coming from parents. वो environment वैसा So नहीं मिल रहा है. as we move the conversation ahead, I'll throw light on this कि how can we change this? Yeah. So मेरा इस पे एक क्वेश्चन ये है कि ऑब्वियसली आपने बताया स्क्रीन टाइम एक है, बट उसके पीछे एक बहुत बड़ा पिक्चर है जो चल रहा है, विच वी नीड टू एक्चुअली सी. बट एक पैटर्न देखा गया, स्पेशली बच्चों के पास, एज यू करेक्टली मेंशन, पेरेंट्स हैं, उनके पास उनकी फैमिली है, कजिन्स है, उनके स्कूल के फ्रेंड्स है, बट स्टिल दे आर ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर्स मोर ऑनलाइन. बहुत सा डेटा निकल के आ रहा है जहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स एंड बुलिंग हैपनिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग टू द चिल्ड्रन, स्पेशली टू द गर्ल चाइल्ड. सो ये स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट करना, स्पेशली ऑनलाइन, हाउ दे जनरली डू इट एंड व्हाई इट इज हैपनिंग? See, children are at that age जहाँ वो एक्सपेरिमेंटल होते हैं, उन्हें नए नए एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं, लॉट ऑफ पीयर इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर भी होता है. सो मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं. अब स्ट्रेंजर्स से बात करना आसान इसलिए होता है कि वहाँ पे जजमेंट नहीं होता है. वो आपको जानते नहीं हैं, तो आप अपनी जो इमेज पेंट करना चाहो आप पेंट कर सकते हो. दूसरा, ऑनलाइन ये इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अपने घर के कंफर्ट में हो. आप सामने जिससे बात करते हो, अनोनिमिटी के चलते यू फील सेफ एंड इट्स इजी टू ट्रस्ट बिकॉज आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो. अब यही सेम चीज़ हम एज पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं कि नहीं, स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करना है इन द रियल वर्ल्ड, राइट? बचपन से हर किसी को बोला गया, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, हमने हमारे बच्चों को भी ये बोला हुआ है. बट वी हैव टू नाउ मूव टू सेइंग दैट ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स से किस तरह से बात करनी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है. करेक्ट. एट दैट एज, यस, जहाँ से उन्हें वैलिडेशन मिले, जहाँ से उन्हें एक्सेप्टेंस मिले, जहाँ से उन्हें नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट मिले, और जहाँ से उन्हें काइंड ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिले, तो वो उनके लिए अट्रैक्टिव हो जाता है. एंड यही एक रीज़न है जिस वजह से ऑनलाइन ग्रूमिंग का शिकार ज़्यादातर बच्चे बहुत इजीली बन जाते हैं. क्योंकि ये जो क्राइम्स हैं जिसे हम ऑनलाइन ग्रूमिंग कहते हैं, ये स्टार्ट ही होते हैं फ्रेंडशिप से. एज इन द पर्पिट्रेटर यहाँ पे बच्चों से दोस्ती करते हैं, उनका ट्रस्ट विन करते हैं, एंड देन दे स्लोली ग्रूम एंड एक्सप्लॉइट देम. या इट्स बिकॉज जो डेटा आता है हर रोज, जो न्यूज़ आ रही है, इट इज़ रियली स्कैरी. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है कि माँ बाप के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है, वो एनवायरनमेंट वैसा मिल नहीं रहा है. आप ऐसे कोई साइंस स्पेशली आप बता पाओगे कि जहाँ पे बच्चा इज गोइंग थ्रू अ बुलिंग और समथिंग ऑन दी ऑनलाइन स्पेस, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, बट दे आर नॉट एबल टू शेयर बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, बट ऐसे कोई साइंस, ऐसे कोई उनके बिहेवियर में पेरेंट्स अगर देख पाए, so that they can initiate the talk while the children is not initiating? No, it's a fantastic question because any behavioral change is the sign that no parent can ever afford to ignore. So any child जो emotional distress के through जा रहा है, क्योंकि emotional distress is what leads them to become vulnerable online. Okay. तो we look out for signs which are of emotional distress, and then I will also add कि digitally अगर उन्हें distress feel हो रहा है तो कैसे वो signs अलग हो जाते हैं. Okay. See, children are like clay या sponge जो कहो आप, तो उनके environment में जो हो रहा होता है वो वही energies pick up करते हैं. ठीक है. तो अगर घर में तनाव है तो that is where they will look and escape online.
और जब आप उस तनाव के माइंडसेट से ऑनलाइन वर्ल्ड में एंटर करते हो, आप ज़्यादा वल्नरेबल होते हो टू फॉल प्रे टू एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज यू आर लुकिंग एट सम पीस ऑनलाइन, तो आप इजीली ट्रस्ट करोगे. हल्का भी कोई आपको अच्छा महसूस कराएगा, यू विल लोअर योर गार्ड्स, आप सारे वो भूल जाओगे प्रिकॉशनरी मेथोडोलॉजीज, बिकॉज यू जस्ट वांट टू फील नाइस. सो इन टर्म्स ऑफ साइंस, इफ यू सी दैट ऑनलाइन एक्टिविटीज को लेके बच्चों की सीक्रेसी बढ़ रही है, सो दैट्स योर फर्स्ट साइन. अगर एवरी ऑनलाइन इंटरैक्शन के बाद बच्चा हाइपर हो रहा है, इरिटेबल हो रहा है, या आपको फियरफुल दिख रहा है, या अवॉइडेंट बिहेवियर दिख रहा है, तो दीज आर सम ऑफ योर साइंस. एनी चाइल्ड हु इज लूजिंग स्लीप, ये एक साइन है जो आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हो. मे बी द रीजन कैन बी एनीथिंग, बट स्लीप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड चिल्ड्रन नीड दैट काइंड ऑफ स्लीप. तो अगर स्लीप पैटर्न में कहीं कुछ चेंजेस हैं, सो दैट्स ऑल्सो साइन. एंड अब ये डिजिटली अगर इन्फ्लुएंस्ड है, सो देन इन दैट केस यू विल ऑलवेज फाइंड योर चाइल्ड टू बी दिल हैव दैट एक्सप्रेशन ऑफ एंग्जाइटी, दैट टेंशन, हर छोटी छोटी बात में ओवर रिएक्ट करना. दे मे वांट टू सोशली कट ऑफ. करेक्ट. So that is another sign. Their relationship to their device, वो आप मॉनिटर बहुत ज्यादा वो सिक्योर हो जाते हैं, या तो बहुत पोजेसिव हो जाते हैं, या तो फिर completely उससे डिसोसिएट करना चाहते हैं कि बिकॉज ऑफ द फियर दे जस्ट वांट टू गिव अप. एनी एक्सट्रीम बिहेवियर. तो अगर कोई इंट्रोवर्ट बच्चा है, वो सडनली एकदम एक्सट्रोवर्ट हो रहा है, दैट्स ऑल्सो अ साइन दैट देयर इज सम इन्फ्लुएंस. करेक्ट. Or vice versa. Correct. It nice bubbly child, but now has withdrawn completely silent, and become quiet and shy and not talking. तो generally day to day lives में बच्चे किस तरह से complain करते हैं? मे बी शायद सुबह उन्हें उठ के स्कूल नहीं जाना है, या रात को उन्हें अकेले नहीं सोना है, या कभी पेट में दर्द का बहाना होता है. Correct. These are also can be associated to the anxiety which comes from any kind of online distress also. So निराली, आपने बहुत अच्छी बात बोली, बिकॉज पेरेंट्स आज की डेट में ट्रेनिंग जो ले रहे हैं वो न्यूट्रिशन पे ले रहे हैं, विच इज़ फाइन, विच इज़ रिक्वायर्ड. वो ले रहे हैं ऑब्वियसली कौन सी स्कूल चूज करना चाहिए. दे आर टॉकिंग अबाउट कि बच्चों को किस तरीके के मतलब क्लोथिंग्स की मल्टीपल तरह की उन लोग की एक्सपीरियंस और मल्टीपल तरह का उन लोग कंटेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं. फॉर देम व्हेन इट कम्स टू स्क्रीन, उनको पता है कि स्क्रीन है, वो कुछ ना कुछ एक तो कार्टून में है या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा है. बट ये आपने जो डेटा बताया आई थिंक, और जो आपने बिहेवियर्स बताया, ये इसका उनको ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली आज की डेट में, बिकॉज एजुकेशन भी कहीं ना कहीं अभी स्क्रीन से रिलेट हो ही चुका है. और मैंने एक आपको एग्जांपल बताऊंगा कि एक चाइल्ड है जिसने अपने 2 अकाउंट बना के रखे हैं, वो मुझसे शेयर किया है, एंड शी इज मस्ट बी इन द एज ऑफ 15-16 ईयर्स ऑफ, एंड बट उसने मुझे बताया कि मेरे पास ये 2 अकाउंट है, एक फॉर पेरेंट एंड वन इज फॉर दिस. सो दिस बिहेवियर इज वेरी कॉमन. हैव यू सीन दिस पर्टिकुलर? See, our world has now become global, right? तो इंडियन कल्चर के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन प्राइवेसी जो कॉन्सेप्ट है, ये वेस्टर्न कल्चर, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, द प्राइवेसी इज वाज वेरी नॉर्मल इन वेस्टर्न कल्चर. अब क्योंकि इंटरनेट वर्ल्ड हैज मेड आवर वर्ल्ड अ ग्लोबल वर्ल्ड, सो चिल्ड्रन इन इंडिया हैव आल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एंड डिमांडिंग दैट प्राइवेसी, एंड दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन डू दिस. कि एक अकाउंट वो ऑफिशियल वो रखते हैं जहाँ पे उनके पेरेंट्स एंड फैमिली members हैं, and then they will have their own private world where it is their friends and where they don't have to fear of an adult's judgment and intervention. Correct. मतलब ये क्लियर दिखा रहा है कि उनका जो रिलेशनशिप है with their parents is not that great maybe, या फिर वो अपने माँ बाप से बहुत डर रहे हैं, या वो ऐसी चीज कर रहे हैं जो अपने पेरेंट्स को बताना नहीं चाह रहे. That's the very clear sign of it. Correct. यहीं पर हम लोग उसको रिवर्स देखें कि हमारा रिलेशनशिप अगर अच्छा हो, हम बच्चों को उतना माहौल दे पाए कि ताकि वो आपसे सारी बातें आके करे. और ऑब्वियसली कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा पेरेंट कोई ऐसी हरकत करे, कोई ऐसे गलत ट्रैक में जाए, वो तो सेफ गार्ड ही करना चाहते हैं. तो ये स्टार्ट तो वहीं से होगा कि पेरेंट अच्छा माहौल दे, अच्छा कॉन्वर्सेशन करे, ताकि ये स्पेस, बिकॉज ये बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही स्कैरी सब्जेक्ट है. यहाँ पर बच्चा सेक्लूडेड हो रहा है और आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, विच इज वो कहीं और ट्रस्ट कर रहा है, किसी और के पास जा रहा है, तो वो विच यू विल नॉट कम टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल. या सो वेरी करेक्टली मेंशन. सो एक ना बहुत बिकॉज ये परेशान करता है एक्चुअली सब्जेक्ट, और बहुत डिबेटेबल है. हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा जो कर रहा है वो ऑनलाइन जाए. Everything which is happening in and around to their child which is getting shared online. You want to showcase. तो मतलब एक नया वर्ड है sharenting, what you can say on this, which is generally trending.
हाउ डू यू सी दिस, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म चाइल्ड को कैसे इफेक्ट करेगा, और अभी भी अगर अपने बच्चे की आइडेंटिटी रिवील हो रही है फ्रॉम ऑल दी एस्पेक्ट, सो हाउ इट्स गोना सी? सी हम ना धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया से कनेक्ट हो गए हैं जहाँ पे विजिबिलिटी बहुत बड़ा पैरामीटर है. सो लॉट ऑफ पेरेंट्स जो शेरेंटिंग में बिलीव करते हैं या शेरेंटिंग का हिस्सा हैं, कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन ये होता है कि एक पब्लिक प्रोफाइल बनाई जाए. दे वांट टू शोकेस देयर चाइल्ड्स टैलेंट या शोकेस देयर चाइल्ड्स लाइफ, either for memory purpose or that we're living in influencer culture, right? तो कहीं वो भी एक एस्पेक्ट हो जाता है. Today lot of parents want a trophy child क्योंकि everybody is talking about achievements and आपका बच्चा भी एक achievement ही है. तो उससे पेरेंट्स वांट, बट मैं बोल रहा हूँ ये पेरेंट्स वांट, बट व्हाट अबाउट चाइल्ड? उसको तो पता ही नहीं हो क्या रहा है. Absolutely. So now whether to do this is right or wrong, ये बहुत सब्जेक्टिव चॉइस है. आई थिंक अगर आप ये इन्फॉर्म्ड चॉइस करो दैट इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं. सो नंबर वन, लेट्स अंडरस्टैंड दैट चिल्ड्रन ऑल्सो हैव राइट टू प्राइवेसी एंड चिल्ड्रंस कंसेंट इज इम्पॉर्टेंट. जब आपका बच्चा छोटा होता है तो उस कंसेंट की जिम्मेदारी आपकी होती है. करेक्ट. तो आप सोच समझ के वो डिसाइड करिए कि आपने अपने बच्चे की लाइफ कितनी ऑनलाइन एक्सपोज करनी है. Number two, in terms of their private and personal sensitive information. Because information today is your security. Correct. जितना कम information उतने आप ज़्यादा secure हो. जितनी कम information online हो. True. Absolutely. तो कभी बच्चों की close-up photographs, uniforms में photographs जहाँ से location identify हो जाए, ID cards की photos, ये बिल्कुल ही नहीं शेयर करना चाहिए बिकॉज यू डोंट नो हु इज एक्सेसिंग योर कंटेंट, राइट? सो सेफ्टी पर्सपेक्टिव इज अनदर कि आप उसे 10 बार सोचिए कि इसमें कहीं कोई सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है जो मैं मेरे बच्चे के लिए शेयर करना चाह रहा हूँ. तीसरा, दैट ओवरऑल दिस सोशल मीडिया जो है ये कहीं ना कहीं एक एनवी का सीड सोव करता है. सी इन्फॉर्मेशन हम पहले भी शेयर करते थे, लेकिन पहले के साथ होता है, लेट्स से आप अगर हॉलीडे पे जाके आए हो, यू आर एक्साइटेड, यू वांट टू शेयर योर हॉलीडे एक्सपीरियंसेस, तो आप अपने फ्रेंड्स को घर बुलाते हो या आप उनके घर जब जाते हो, कॉन्वर्सेशन होती है एंड दैट्स वेयर यू आर गोइंग टू शेयर दिस. तो बोथ द पार्टीज, जो शेयर कर रहा है और जो रिसीविंग एंड पे है, वो उस माइंडसेट में है दैट यस वी विल टॉक अबाउट आवर हॉलीडेज, वी विल टॉक अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस. लेकिन व्हेन यू शेयर इट ऑनलाइन, नंबर वन, एक तो पब्लिक हो जाता है वो इन्फॉर्मेशन. अगर आप प्राइवेट अकाउंट रखते हो तो हैव यू एंश्योर्ड कि आप सबको जानते हो जो आपको फॉलो करता है? 90% ऑफ द टाइम्स वी डोंट. कहीं हमें कोई म्यूचुअल दिख गया, हम ऐड कर लेते हैं. अगर वो म्यूचुअल ने गलती करी है तो हम भी वो गलती दोहरा ही देते हैं. सो एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी का इसमें क्वेश्चन आ जाता है. दूसरा ये कि the time when you are sharing, you are in an excited state of mind, आप हैप्पी हो, आप शेयर कर रहे हो, लेकिन जिससे मिल रहा है क्या वो उस स्टेट ऑफ माइंड में है, वो प्रिपेयर्ड है? आप समझो कि मैंने कुछ पोस्ट किया और आप एकदम स्ट्रेस में हो, आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन वगैरह है ना, आपको दिख रहा है कि आई एम तो पार्टिंग हियर या हॉलीडेइंग ओवर हियर. द फर्स्ट थॉट दैट कम्स इज wow, her life is amazing and look at me. Correct. So now you see, this comparison sows the seed of envy. So that's where it can impact your relationships also. Correct. And then the last aspect is कि in future, see what we put online, ये हर चीज़ एक digital footprint create करती है. तो अगर आप अपने बच्चों की information डाल रहे हो, this is going to build their online reputation. Correct. So evaluate on that parameter that tomorrow when my child grows up, is he or she going to be happy about this? Are they going to feel comfortable कि उनकी इतनी private information online है? Like I'll give you an example. I had a case. This gentleman who came to me, he was in his mid-20s. ठीक है. He was switching the job. अब उनकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने, उनके फ्रेंड्स ने, कॉलीग्स ने एक फेयरवेल पार्टी रखी थी. तो उन्होंने क्या किया कि एक ना वॉल ऑफ फेम बनाया इसके लिए. दे पुल्ड आउट ऑल द क्यूट एंड फनी पिक्चर्स फ्रॉम द फेसबुक. अब इस बंदे के पेरेंट्स उसकी बहुत सारे पिक्चर्स ऑनलाइन शेयर करते थे. पेरेंट्स फेसबुक पे तब ज़्यादा थे बिकॉज इट वॉज एन ओल्डर प्लेटफॉर्म. सो व्हेन ही वाज वेरी यंग, किसी फैंसी ड्रेस में वो फेरी बना हुआ था.
then there was his first swimming lesson की, तो lot of such pictures. यहाँ पे malicious intent नहीं था. Correct. And उसका pet name. Correct. So we, in Indian culture, pet names are very common, and some of them are really very personal. Publicly वो embarrassing हो जाते हैं. Correct. ऐसे Pappu and Sony and Sweetie and stuff like that. Yeah. So they made a very cute wall of fame. हंसी मजाक हो गया, लेकिन आज कोई भी हंसी मजाक या पार्टी या इवेंट वहीं तक नहीं रह रहा है. वो भी जाएगा सोशल मीडिया पे. यहाँ तक all was okay. Now when he went to his new organization, as a welcome, कुछ enthusiastic colleagues ने वहाँ पे उसके previous farewell party की photos लेके welcome and with his pet name डाला. Now it became very embarrassing for him. आप जब नई organization में जाना चाहते हो, आप अपना रेपुटेशन अपने हिसाब से सेट करते हो, लेकिन यहाँ एक प्रेसिडेंट बन गया. It became so embarrassing for him that he left that job in 3 days. तो see, it's a very personal example. शायद दूसरे किसी को ना फर्क पड़े, but all I'm trying to highlight is that what you post can tomorrow become subject to embarrassment, subject to safety risk for your children. So you have to make sure that आप क्यों ये शेयर कर रहे हो, आपका इंटेंट क्या है, and has it passed through all these parameters. Any which ways, not to scare but to make you all aware that Asian children की photographs की value in a deep dark web is very high. There are perpetrators who will download these pictures and sell it online. So हम ही उन्हें मटेरियल दे रहे हैं. Correct. When they were not even waiting कि चलो वो AI generated बनाएंगे, हमें बहुत सारा देंगे. So think of all these things before you post. Correct. I'm not saying don't share your joy. करना है तो एक close group बनाओ on WhatsApp जिसमें आप every single person को जानते हो. Correct. Who you can trust कि ये आगे forward नहीं करेंगे. Correct. बिना आपकी consent के. आप share अपना joy वहाँ share करो. आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि see parent has an intention to show कि भाई we are doing this for our child and we are happy. That's a fair thing. उनके सर्कल में स्पेशली सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं कि ठीक है आपने क्लोज फ्रेंड्स आपने ग्रुप बनाया और आप उसमें शेयर कर रहे हो, बट देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स अवेलेबल लाइक स्क्रीनशॉट्स. आपके पिक्चर का बच्चों का स्क्रीनशॉट लेकर किसी और को भेज रहे हो, उनका इंटेंशन गलत नहीं है, बट वो कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट. सो दैट इज व्हाई इट कंसर्न्स मी अ लॉट, एंड दैट इज वेयर यू करेक्टली मेंशन कि बच्चा जब बड़ा होगा उसको जब पता होगा मेरे पिक्चर्स ये सब मार्केट में, सो हाउ ही विल टेक इट. दैट्स So that's where you have to be very careful as a parent कि what am I putting at risk. Correct. And जो चीज़ एक बार इंटरनेट पे जाती है वो कहीं नहीं जाती. Correct. Yes, मे बी एक आम आदमी के लिए ऐसा है सोचना कि अच्छा मैंने डिलीट मार दिया, मैंने अकाउंट भी डिलीट मार दिया तो सब चला गया. Correct. No, let's understand that if any kind of cyber criminal wants to dig out that information, True. it's not going to be difficult. Correct. Absolutely. So, मैंने कुछ ऐसे एप्स भी देखे, यू कैन करेक्ट एंड हाईलाइट, कि जहां पर एक छोटे बच्चों का वो 20 साल में कैसा दिखेगा, वो 40 इयर्स में कैसा दिखेगा, 60 इयर्स में, दैट इज देयर. सो एब्सोल्युटली ऑलरेडी ये सब टूल्स अवेलेबल है, एंड दैट कैन लीड इट टू समथिंग डिफरेंट फॉर अ चाइल्ड मे बी, सो करेक्टली मेंशन. बट आप मुझे बताएंगे एक बिगेस्ट मिस्टेक जो पेरेंट पर्टिकुलरली ये डिजिटल वर्ल्ड में कर रहा है. कैन यू जस्ट हाईलाइट सम ऑफ दिस? सो number one is not accepting the fact that we have to move ahead with the time. Most common mistake that parents do is they start that conversation. हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, हम ये नहीं. The moment you say this, you've lost your child in the conversation. Yeah. Also, second is reactions. See, as parents, we are also new to the digital environment. Not everybody is from the tech industry कि उन्हें इतना समझ में आए ऐसे. तो put that effort in learning that. पेरेंट्स ना बहुत प्राइड लेते हैं ये बोलने में कि अरे माय चाइल्ड इज सो स्मार्ट, वो तो टेक्नोलॉजी यूं समझ लेता है, 2 साल का है लेकिन आईपैड चला लेता है. आप थोड़ी बहुत प्राइड अपने लिए भी लो कि मैंने भी अपने आप को अपग्रेड किया, मैंने भी समझा ये ऐप कैसे चलता है. इसमें सी बिकॉज यू आर एन अडल्ट यू विल हैव अ फार साइट कि इसमें क्या गलत हो सकता है. जैसे मोस्ट चिल्ड्रन, छोटे बच्चे रोब्लॉक्स वगैरह खेलते हैं, राइट. नाउ उस गेम में रोब्लॉक्स एज अ गेम लुक्स वेरी वेरी सेफ.
there's nothing majorly wrong. It's not a violent game. Yeah. It's not an aggressive game. But what else can go wrong there? This is an adult, you can see that yes, is the Roblox on the device having access to the photo gallery? तो उस gallery में किस तरह के pictures हैं? And क्यों चाहिए Roblox को access? Yeah. Is it having access to location? Is it having access to a microphone? Is it having access to the camera? So many other contacts. Correct. तो ये बच्चा नहीं समझेगा. True. You have to. So that's what, that don't react. Upgrade yourself, learn and respond to your child. Yeah. सबसे कॉमन मिस्टेक दैट अगर बच्चे ने आके कुछ बोला कि ऑनलाइन ऐसा कुछ हुआ, द फर्स्ट थिंग इज पेरेंट्स ये तो फोन यूज करता है इसलिए होता है, दे विल टेक अवे द डिवाइस और दे विल से इंस्टाग्राम बंद कर दो, स्नैपचैट बंद कर दो. दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ सोल्यूशन. क्योंकि इफ द चाइल्ड डज दैट, उसे अपने पीयर सर्कल में इंक्लूजन की इश्यूज हो जाती है. वी हैव हैड फैमिलीज हु बीन वेरी अमेजिंग इन हाउस रूल्स के, यू नो, बच्चा 16 साल का होने तक हम डिवाइस नहीं देंगे, नो सोशल मीडिया. बट देन दिस चाइल्ड इज गोइंग टू हैव इशू जब उसका पूरा क्लास सोशल मीडिया की बात कर रहा है. दे कांट मैच अप. यू कैन नॉट इग्नोर इट. सो यू नीड टू एजुकेट. इंक्लूजन इश्यूज हो जाते हैं. वहाँ मजाक बन जाता है इनका कि अरे इसको तो पता भी नहीं है व्हाट इज स्नैपचैट. करेक्ट. सो यू हैव टू हैव अ बैलेंस. और ये कब हो सकता है? जब आप खुद वो अवेयर हो. करेक्ट. You don't have to learn everything. Yeah. You just have to know what is trending and what is popular. Yeah. So like I'll again summarize it in 3 different things that parents, you know, miss out on. Yeah. Number 1 is upgrading themselves and familiarizing themselves with technology. Correct. Parents में especially mothers ना बहुत डरती है कि नहीं मेरे को टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती है. सब समझ आता है अगर आप कोशिश करें. Number 2 कि आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, आप रिएक्ट कर देते हो. जैसे जो रिएक्शन सेम नीचे अगर आपने देखा आपका बच्चा लड़ाई कर रहा है किसी से, बिफोर समझे सुने कि क्या हुआ किसने किया, वी रिएक्ट. सेम डिजिटल एनवायरनमेंट में भी टेकिंग अवे द डिवाइस, टेलिंग देम नॉट टू गो ऑनलाइन इज नॉट गोइंग टू बी द सॉल्यूशन एनीमोर. आपके सामने नहीं करेगा, जाके दोस्तों के फोन पे करेगा. सो नो सॉल्यूशन. एंड द थर्ड वन इज वेयर you are not having that space जहाँ बच्चा आपको खुल के कुछ बोल सके. A non-judgmental space in the house. Growing up या childhood is the time जब हम mistakes करते हैं. हमने भी की है, पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स ने भी कुछ ना कुछ किया. हमारे टाइम पे अलग टाइप की मिस्टेक्स होती थी, अब के टाइम पे डिजिटल मिस्टेक्स होती हैं. सो गिव देम दैट लेवरेज. करेक्ट. जज नहीं करिए, समझ के लीजिए. बी अ गुड लिसनर एज अ पेरेंट. यू नो, also this can be very easily inculcated with being a little more not a no parent. That's something we all must learn. Become a yes parent. Yes parent does not mean that आप हर चीज के लिए हाँ बोल रहे हो. Counter question करो. Let's say if your child comes and tells you, Mom, can I make my Instagram account? ज़्यादातर parents क्या बोलते हैं? No, you're still young. If you shut it down, they have multiple other sources of information. Yeah. Become a yes parent. Understand. Yeah, where did you hear Instagram from? Who all are using Instagram? Why do you want to go? What do you think? What is that app about? Yeah. Learn more from them. When you learn it, then you can answer it better. If you come to know कि yes, class में सारे Instagram की बात कर रहे हैं, तो yes, okay, fine, let's do it. But ये rules हम follow करेंगे. That's how you can set up your entire conversation with your child. Yeah. But if you shut them down with a no, you've lost that relationship. आप पर्टिकुलरली इस स्पेस में काम कर रहे हैं, रोज कोई ना कोई आप सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं. ऐसे कौन सी कंप्लेंट्स है, इफ यू कैन से, स्पेशली यू हैव सीन अ पैटर्न जो चाइल्ड में सबसे ज़्यादा आ रही है आपके पास, और यू कैन से वो एक सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस रूप ले रहा है, और समथिंग वेरी कॉमन हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड हु इज़ लाइक फ्रॉम 10 to 16 या 10 to 17 के बीच में है. और ऑल्सो इसके साथ एक क्वेश्चन जोड़ूंगा कि ऐसे कितने बच्चे जो आपके पास, आपने बोला 70% चिल्ड्रन है, उनकी एज ग्रुप अगर आप हाईलाइट कर पाए फॉर दी पेरेंट्स. या Sure. I'll start with the last question first. कि जो ज़्यादातर एज ग्रुप, so the youngest victim who had written to us was 9-year-old. Maximum of them fall into, let's say, of an age of 13 to 17 के बीच. So when you say 9 years old, so without his parent, without knowing his parent, the complaint you can say? Yes, that child, so there were a couple of them, 9, 10, 11 के. इन बच्चों का ज़्यादातर was bullying on gaming apps. Oh. And when I talk of little older children, then there are trolling issues, bullying, यानी
एक्सक्लूजन होते हैं, बुलिंग के कई प्रकार होते True. हैं. Yeah. सिर्फ एंड सिर्फ अब्यूजिव लैंग्वेज ही नहीं होता है. सो with children it is, let's say, like I said, कि everything is group based today. Yeah. आप games भी खेल रहे हो तो वहाँ पे भी आपके multiplayer games होते हैं, groups होते हैं, तो किसी बच्चे को exclude कर दिया उसमें. Now exclusion is also part of kind of bullying or a Correct. type of bullying. Yeah. So exclusion है, body shaming है, which typically girls and also another interesting fact is, and this is an Indian statistic, that if 50% children are being victims of bullying, the 50% rest are also becoming bullies. Some accidentally, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कहाँ लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि इसके बाद ये बुलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, and some knowingly. So that's also bigger alarm for Alarming parents. situation, yeah. कि is your child a vulnerable child or a bully? ये True. दोनों traits हैं. True. And like I said, that body shaming हो गया, grooming हो गया, because where they trust online the strangers, sharing of personal intimate pictures. It's a very common trend in teenagers and adolescents amongst the peers. तो वो share करते हैं trust में, but जैसे ही कुछ अनबन हुई, the picture is circulated on groups. True. So back then, of course, during lockdown, I don't know if you've heard of the cases of boys' locker room and girls' locker room, where the very intimate pictures were being circulated of young girls and stuff. So those kind of cases, in terms of even aggression, behavioral issues, gaming addictions. So addictions are another big, not just gaming, even YouTube shorts and videos के addictions largely. So these are the kind of cases. मतलब ये जो ट्रेंड आप बता रहे हैं ना, अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बच्चे डर रहे हैं पेरेंट्स के साथ बात करने में. उनका रिलेशनशिप हो सकता है, अ कपल रिलेशनशिप, एज यू करेक्टली मेंशन, विच इज इम्पैक्टिंग देम. तो दे वांट देयर ओन स्पेस, दे वांट टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो एनवायरमेंट है घर पे, इस वजह से ऑनलाइन जा रहे हैं. ऑब्वियसली शेयरिंग पिक्चर्स एंड ऑल, आपने बहुत ही कंसर्न सब्जेक्ट है ये. एंड वो पिक्चर्स कहाँ से कहाँ पहुँचने वाली हो, यू हैव नो आइडिया. और वो कैसे, और जो पर्टिकुलरली वो पिक्चर को यूज करेगा उसका दिमाग में क्या चल रहा है, एंड हाउ एग्रेसिव ही कैन टेक इट, एंड व्हाट इम्पैक्ट्स, बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ सुसाइड्स व्हिच हैज हैपेंड ड्यू टू दिस सिचुएशंस. एक क्वेश्चन, इसको हम लोग अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें कि ऐसा क्या एनवायरनमेंट पेरेंट्स घर में बनाएं सो दैट आपका बच्चा आपके साथ सारी चीजें, स्पेशली डिजिटल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो शेयर करे. इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस. This is a very beautiful question, and it is very important for all of us to do. We need to become involved parents and have an environment of inclusion and a non-judgmental environment. When I say inclusion, so I'm not saying कि parents बच्चों को include नहीं करते, but treat them as adults. हम पेरेंट्स ना बहुत कन्वीनियंटली बच्चे को बोलते हैं नो यू आर स्टिल यंग इनफ, और वैसे अरे इतना तो बड़ा हो गया है. करेक्ट. तो आप बच्चे को कंफ्यूज नहीं करो. इफ यू ट्रीट देम एज इंडिविजुअल्स, तो आप शुरू से ही बच्चे की रिस्पेक्ट करोगे, ताकि वो रिस्पेक्ट बाहर नहीं ढूंढे. करेक्ट. You are going to involve them in decisions, so they learn responsibilities. Correct. So they don't face that kind of incident and then they learn a hard way kind Correct. of. And you will also yourselves follow all the rules जो आप ऑनलाइन वर्ल्ड में उनके लिए करते हो. So जैसे पेरेंट्स बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम डिसाइड करते हैं, लेकिन खुद के लिए. करेक्ट. Now gone are the days where children are going to listen to you just because you are a parent. वो शायद हमारे टाइम पे चलती थी कि मम्मी ने बोल दिया नहीं, तो आर्ग्यूमेंट का स्कोप ही नहीं होता था. But today it does not work. These children are much smarter, much more intelligent. All we need is to channelize their intelligence with love, nurture and inclusion. तो आप उनसे conversations करिए. आपके dinner table conversations can be highlighting, like I heard this is what's happening in the cyber world. I heard, talk about digital world. Don't shy away from that. Correct. Yeah. So that's where you connect with your child and the areas which they like. Now children के लिए कौन से apps होते हैं? ज़्यादातर Indian children are on Snapchat or on Instagrams. Discord हो गया, which is a base for gaming. YouTube हो गया, ये common है. Of course there are many more other apps, but these are the most common ones. Talk about these apps. What's happening? What have you heard in your this thing? तो उस हिसाब से अगर आप environment वैसा कर दो, create no screen zones in your house. Create an environment जहाँ पे
प्राइवेट प्लेसेस यानी आपके बेडरूम में आपकी स्क्रीन्स नहीं जा रही हो. आई अग्री कि अर्बन लिविंग में हमारे पास स्पेस की इतनी वो नहीं होती है कि हर बच्चे के लिए एक अलग अलग रूम होगा जहाँ वो स्टडी के लिए हो. बट एक सर्टन आवर कर दो, टाइमिंग्स हो सकता है दैट यहाँ पर नो स्क्रीन्स आर इन द बेडरूम्स. रात को सोते समय आप भी अपना डिवाइस बाहर रखिए. करेक्ट. That's where you will, so you have to teach them by modeling that behavior. Correct. How are you addressing conflicts in the digital world? क्योंकि आप जो बात करते हो वो बच्चे की विचारधारा बनती है. If you are constantly cribbing and being negative, whether it is about their school, whether it is about politics, whether it is about environment, what you are talking, वो बच्चे की सोच बनती जाएगी. तो अगर आप कॉन्स्टेंटली बोलते हो कि यार मुंबई सिटी में कितना पोल्यूशन है, कितना ट्रैफिक है, कितनी आवाज है, अब यही सारा नेगेटिव डायलॉग बच्चे का थॉट प्रोसेस बनेगा. एंड जहाँ जितना ज्यादा नेगेटिव होता है वहाँ रिस्पेक्ट कम होती है. रहना आपको इसी शहर में है या पढ़ना आपको इसी स्कूल में है, तो अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे, रिस्पेक्ट नहीं रखोगे, आप कैसे इससे कुछ ले पाओगे. Correct. So be very mindful. See, parenting is an art. Correct. All you have to do is just get creative. आपने जो पॉइंट बोला कि यू हैव टू इन्वॉल्व चाइल्ड, स्मॉल डिसीजंस में आप उनको इन्वॉल्व करो, दे विल फील इम्पोर्टेंट, एंड व्हाइल दे फील इम्पोर्टेंट दे विल फील कनेक्टेड. True. मैंने एक रिसेंट डिस्कशन किया विद अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड शी आल्सो मेंशन इट कि यू शुड इन्वॉल्व योर चाइल्ड इन कि खाना क्या बनना है, आप उनसे पूछो. आप एक पूरे हफ्ते का प्लानिंग करो सो दैट साथ में बैठ के दैट कैन क्रिएट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, स्पेशली आपके साथ नहीं बट वो बच्चा भी वो फूड के साथ एक रिलेशनशिप बनाएगा एंड ही विल हैव हिज ओन चॉइसेस. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, सी टुडे द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू ईट फूड इज टीवी देखते हुए या स्क्रीन के साथ. लॉट ऑफ पेरेंट्स, इंडियन मदर्स हैव दिस ऑब्सेशन कि बच्चे को खिला के ही रहना है, खिलाओ. तो क्योंकि वो बच्चा है, फूड उसकी लास्ट प्रायोरिटी है. करेक्ट है. Their priority is fun, play, new learning, new experiences, friends, and फिर आता है खाना. True. अब वो खाने पे बैठेगा नहीं एक जगह पे या बैठेगी नहीं, तो आप स्क्रीन चला दोगे. The damage that you do with this is irreversible. Number one, वो स्क्रीन के साथ अगर खाना खा रहा है तो they do not realize what they are eating. कितनी उसे भूख है. क्योंकि माई इंटेंशन एज अ चाइल्ड इज के मैं तो जितना ज्यादा खाऊंगा उतना ज्यादा टाइम मुझे स्क्रीन देखने मिलेगा. सो दीज आर द चिल्ड्रन हु ग्रो अप नॉट रियलाइजिंग कि कब उनका पेट भर गया है. करेक्ट. दे आर ईटिंग आउट ऑफ इमोशन. एब्सोल्युटली. प्लस द वे द ब्रेन प्रोसेसेस, so we have all our senses, as in vision, listening, smell, touch, all of these. The priority is always vision. Correct. तो अगर आप कुछ देख रहे हो, ब्रेन आपका बिजी है उसे प्रोसेस करने में, वो खाना प्रोसेस कर ही नहीं रहा है. Absolutely. But Nirali, obviously there has to be a boundaries set. एक बहुत क्वेश्चन है, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव और उस पे व्यूज हो सकते हैं कि बच्चों को डांटना कब है. कहीं ना कहीं तो एक कंट्रोल और एक लाइन होनी चाहिए. So how do you address this particular, especially on the digital world में आपको कहाँ उनको रुकना चाहिए और कहाँ नहीं है? I will say don't follow control. Follow bonding. Follow trust building. जहाँ ट्रस्ट होता है वहाँ पर वो नीड टू वायोलेट इट बहुत कम हो जाती है. क्योंकि फ्रीडम मिलता है ट्रस्ट के साथ और फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो आप जनरली वायोलेट नहीं करते. कंट्रोल इज व्हाट लीड्स टू लाइंग बिहेवियर. फियर आ जाता है, अथॉरिटी आ जाती है. There are different styles of parenting. Authoritative is there, but I would say that have a very adaptive style of parenting. जहाँ आपने decision लेना है for let's say कौन सी school better है. Yes, you can apply authoritative अगर आपने अपना homework सही किया है वगैरह. Where you have to involve your child, there you can be a parent who is much more involving parent and not an authoritarian kind of parent, right? So बहुत liberal भी नहीं parenting करनी है, बहुत authoritative भी नहीं करनी है. You have to be in between, a balanced approach. So in terms of कि कहाँ control लाएं, so rather than control, look at it as right education and setting right boundaries. Boundaries की वैल्यू बच्चों को बचपन से ही सिखानी चाहिए. Correct. ये जब बड़े होते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, जब
रिलेशनशिप काउंसलिंग में आते हैं तब समझते हैं कि बाउंड्रीज क्या चीज। Correct. बट अगर आप ये बचपन से ही सिखा दो, सो दे विल लर्न टू क्रिएट देयर ओन बाउंड्रीज एंड रिस्पेक्ट देयर ओन बाउंड्रीज। तो साथ में बैठिए, फैमिली के लिए एक रूल बनाइए, उन्हें इन्वॉल्व करिए कि ओके आपका स्क्रीन टाइम एंड यू हैव टू डिवाइड द स्क्रीन टाइम इन एंटरटेनमेंट एंड इन education yeah, true. or productive and non-productive, क्योंकि today a lot of our screen usage is also for productive work kind of. So identify, use the technology only. हर फोन में today you have screen time monitoring apps, उसमें आप locks लगा सकते हो वगैरह, तो साथ बैठ के ये करिए. The more you build this, the lesser the need of control. And have very very clear rules of accepted behavior, non-accepted behavior, common. It can't be कि बच्चों के लिए अलग है ना आपके लिए अलग है. आप चिल्ला के बात करो लेकिन बच्चा चिल्ला नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है. It has to be universal rule of the house. That in this house, these kind of certain behaviors are not expected, are not accepted at all. So this is the boundary we have. When we lay down these rules, parents don't have to be aggressive. Don't have to be emotional, they have to be firm. So I'll give you a small example. Let's say if your child's screen time is right now very high. See that it's never too late to correct it, right? तो अब आपको उसे चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल कि आपका बच्चा रात को लेट तक गेम्स खेलता है अपने फ्रेंड्स के साथ. दिस इज अ कॉमन सिनेरियो. वेकेशन टाइम शुरू हो गए हैं तो ये बहुत कॉमन हो जाता है. And you want to start a rule in the house that 11 o'clock we surrender our devices. या 10:30 we give our devices. You can't go and do it tomorrow कि कल से मुझे डिवाइस चाहिए. No, that's where we apply a say and do technique. You give them time. Say the rules of the house are changing for all of us. Let's say today we are sitting on 29. Say from 5th of April, we are all going to submit our devices and that's it. Now you reiterate and make a very clear consequence for this. So that's how you can very firmly say and do it. See, the more you say it, the resistance breaks. अगर आप sudden change करोगे तो आपको एक reaction ही मिलेगा बच्चे से. But if you say and do it, till the 5th उसका रहेगा negotiation. No, this is not fair. Please allow me. मेरे सब दोस्त खेलते हैं, ये है वो है. You cannot give in. Don't make those. ज्यादातर पेरेंट्स हमने देखा है कि बच्चों को डांटने के बाद खुद ही जाके सॉरी बोल रहे होते हैं. सो व्हाट यू डू एंड डन इज यू मेड द चाइल्ड कंफ्यूज्ड. उसे ये नहीं समझ में आया कि वो गलत था कि मम्मी का टैंट्रम था. सही बात है या मम्मी का मूड स्विंग था. If you have, for any reason, I mean, I'm not a believer of shouting. I feel if you treat your child as an individual, आप हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करोगे, चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस पर कभी. लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है, do not go and apologize. Yes, you can apologize for your tone. But stick to the point. Reiterate that this behavior is not okay. Correct. So this is how you can lay the ground rules, use the techniques of say and do to bring in any change. Suddenly don't impose new rules. And show it in your own actions. Correct. No. So आपके ऊपर हम जब रिसर्च कर रहे थे while you were coming in, you have mentioned गुड़गांव पुलिस के साथ भी आप कुछ एक पर्टिकुलर कर रहे हैं. आप just throw some light कि what are you doing especially with this particularly? Sure. So see, large part of my work is the trainings on cyber safety, and ये अलग-अलग audiences के लिए हम करते हैं. So we work with schools for cyber safety education and training for students, for parents, for teachers. We work with corporates for their employees on parenting and for good digital etiquette and behavior. We work with police, whether it is Gurgaon Cyber Cell, I've worked with Maharashtra Police in terms of sensitizing them on dealing with the victims of cybercrime. कि cybercrime के जो wounds हैं वो नजर नहीं आते हैं. तो आप किसी से एम्पथाइज कैसे करोगे? जनरली शुरू में ये होता था कि पुलिस का रिएक्शन ऐसा होता था कि आपको अक्ल नहीं थी, आपने कैसे OTP दे दिया. दिस इज हाउ यू डिस, बिकॉज वो दिखाई नहीं देता है, राइट? सो दैट्स वेयर वी सेंसिटाइज देम. हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये इसमें कैसे ये विक्टिम बना है, हाउ डू वी ट्रीट देम. सो दैट इज द काइंड ऑफ, आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स फॉर डिफेंस फैमिलीज. Their world is very different and a very, very secluded world. So in terms of, what kind of awareness is required, a lot of our trainings also are on latest cyber crimes which are targeting children and women. तो इस पे भी हम sensitize करते हैं. गुड़गांव पुलिस के साथ जो था, so they run a program which is
for creating cyber warriors. तो वहाँ पे I take this every year a particular talk on understanding the psychological impact in the cyber world and how it is impacting all of us. हम जब भी online जाते हैं तो how it impacts our decisions, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम किसे कमेंट कर रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, एंड विक्टिम बनने के हमारे चांसेस, एंड विक्टिम बनने के बाद हमने क्या करना चाहिए. सो दैट्स व्हाट ऑल दिस ट्रेनिंग इज अबाउट. सो आई थिंक वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन, बट कुछ 3-4 क्वेश्चन है. आई जस्ट वांट वन वर्ड फ्रॉम योर साइड, काइंड ऑफ अ रैपिड फायर. सो ओके, सो वन मिथ अबाउट स्क्रीन टाइम. It's not about the number of hours. It is when and what. So when is that screen time and what is that screen time for? That's more important. Okay, great. One mistake every parent should avoid. Of jumping to conclusion and reacting. Okay. One habit that builds digital safety. Taking a pause. Every single action के पहले pause लो. आपको forward करना है, पहले pause लो. आपको कमेंट करना है, पहले पॉज लो. आपको कुछ पोस्ट करना है, पहले पॉज लो. Correct. That pause will help you look at it in a calmer way. See, this is very interesting आपने जो बताया, because most of the time we go emotionally, generally we type and we immediately comment It is and we always react. emotional. And क्योंकि डिजिटल मीडियम इतना फास्ट है कि वो ट्वीट पे आपने अभी रिएक्ट नहीं करा तो वो ट्वीट लॉस्ट हो जाएगी या वो रील लॉस्ट हो जाएगी, तो वो हमें सोचने का मौका ही नहीं देता है. आई एम नॉट सेइंग पॉज मतलब आप 2-4 घंटे ले लो. आई एम सेइंग टेक अ 10-second pause, just take 2-3 deep breaths. That breaks that emotional trance. And आप फिर लॉजिकली उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग. सो इसमें मैं इमीडिएटली जो रिलेट कर पाऊंगा, स्पेशली जो हम लोग शेयर कर रहे हैं, टेक अ पॉज. यस, ऑलवेज टेक अ पॉज एंड सी कि वेदर इट इज नीडेड. स्पेशली आप बच्चों के साथ जो डाल रहे हो, क्या ये पिक्चर जाना चाहिए, कोई और पिक्चर है, नहीं है, सो दैट यू कैन. एंड इस पिक्चर में ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी है, राइट? सी, आज ऑनलाइन जितना कंटेंट जाता है, इट बिकम्स द फ्यूल फॉर योर सर्च इंजिन्स, फॉर योर AIs वगैरह. तो आप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो? आई ऑलवेज गिव दिस मेटाफोरिकल एग्जाम्पल कि आप जब भी ऑनलाइन कुछ डालते हो, विजुअलाइज के जैसे आप हाईवे पे एक होर्डिंग पे इंफॉर्मेशन डाल रहे हो. कोई भी आता जाता उसको देखने वाला है. करेक्ट. तो आप वो उस हिसाब से सोच के डालिए कि अगर ऐसी इंफॉर्मेशन किसी को भी दिख सकती है तो व्हाट एम आई ओके विथ. दैट्स हाउ यू कैन डिसाइड. एब्सोल्युटली. And one piece of advice to every parent watching this. Upgrade yourself to digital parenting. Yeah. True, I think Nirali, we had a great conversation and I think मतलब मुझे लगता है माँ बाप को apart from nutrition and parenting में बहुत सारा जो other subjects है, especially mentally how child has to be secure, और physical fitness हम लोग ध्यान देते ही है बच्चों का, but एक mental fitness की तरफ भी ध्यान होना चाहिए. Apart from this, digital awareness, especially for your child, आज उनको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा कि आप इस एंगल को डेफिनेटली अच्छे से देखिए और डीपली देखिए, और सिर्फ उसको ऊपर से ना देखिए, आप टाइम निकाल के इस पे रिसर्च करके आप इस पे पढ़िए, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. ट्रू. So I'll also share that I have hosted a very beautiful course on digital parenting on Udemy. Okay, great. It's not very long. It is for everyone who wants to understand how to raise digitally safe children. Okay, great. It's like available over there. And what I can also do it for your audiences, we can give you a code which can help them get it at a better price. Perfect. We can display it whenever needed. That's one thing. It's tried, tested over, it has 10 years of experience and knowledge in it. So I'm very confident that it will help you in your journey of raising a very, very digitally safe child. Great to know. Thank you so much for joining. Welcome. Thank you so much. Yeah.